All right. Good evening, ladies and gentlemen. Do let me know if the audio video is clear so that we may go ahead and start the session. Nabhanya, Anant, Vash, Aditi, all guys, kindly confirm your disposition to audio and video. Is the audio and the video both clear, ladies and gentlemen? Rishabh is saying clear, sir. Okay. Anybody else who has got a voice to a pin? Shikhar is saying clear. Shivam clear. Nabhanya clear. Wonderful. Aditi Agrawal, we are seeing her after a long time. I don't know which forest she is pasteurizing in these days. I would like to know the reason of absence in the continual classes. Okay, Shrankla, yes sir, all good sir. Dev Raj, Rai, Crystal here. All right, wonderful. Right, ladies and gentlemen, I was about to post a video on how to fill CAT forms and what kind of programs you had to fill, but we were into a research process talking about the program so that when we make a video we are very confident about it, because a lot of new programs have been added in the IIM forms. So we were just researching about it and our whole afternoon was dedicated to it. But Mukul sir, our Priya Mukul sir, has been able to do the research work successfully, and then I had a class from 4 to 5 and then 5 to 7. So after the class I'll be making a video, and by late night today you shall be receiving a video, okay, on how to fill CAT form and what are the programs you shall be taking in consideration, right Mukul sir? All right, brilliant. So let us today start a very interesting lecture on how to deal with the poems. In case you get a poem in the paragraphs, how do you deal with it? Okay, so poems basically specifically check onto the fact as to how good you are at finding assumptions. Okay, a very little is spoken in a paragraph and then you have to find out as to how much has been spoken out of the words. So poems are nothing but very word economical paragraphs. Okay, so if you have to write something very formally, you will write the same thing into like 500 words, but you have to say the same thing in very little. You use very less number of words and try to give a lot back to it. Okay, so that's what a poem is. In a poem you have to read very little and understand and try to understand more out of it. Okay, that's what the game of a poem is. Shikhar will talk about it later on. Right now we are in a mood to discuss poems. Okay, now when we talk about the poems, we must understand as to, for example, I'll give you a very small, example. For example, you have to talk about the fact that greed is something which supersedes everything on planet, and whatever you do, there is an inherent greed into it, right? And you have to write a paragraph. You can go and write a long paragraph onto it, try to use a lot of words and be very verbose about it. But Shakespeare said the same thing in a very small term, right? He said, like, what a piece of work is mankind, how noble is the reason, how infinite are the faculties, yet how scandalous man is. So he said the same 500 letter paragraph into just 10-15 words and tried to convey the same idea. So words are nothing but usually foreign poets' poetry is asked in CAT. Yes, it is not necessary, Aparna, right? That poem will definitely be asked into CAT. It may be asked, it may not be asked. So you have to make sure that you have a precise idea about finding out as to, you have to read very little and try to understand more out of it. So in that particular case, you have to be very much determined to study, to read every letter, every word, and try to take the contextual meaning out of it. Okay, so solving poems is a bit difficult than solving the paragraphs. Okay, and for that reason, whenever a poem is asked into ZAT or CAT, you should take a very bold step of solving it towards the end of the question paper and not towards the very first, because it might hamper your confidence level. Okay, because poems usually are a bit difficult to understand than overall prose. Okay, poems are more difficult to understand than proses are. So I would request you to, are poems asked more into ZAT than CAT? Yes, the frequency of poems
in XAT is more than that of CAT. Okay, XAT, if you see, every alternate year we will be able to see one poem, right? In CAT, every 3-4 years the frequency is less in CAT and more in XAT, right? But that should not be an area of concern. Our area of concern is to ensure that if a poem is asked, you should be very comfortable with it. Okay, so first and the foremost things, okay, never go with a presupposed mind that you will understand a poem. Okay, you may not be able to understand a poem. So पोएम को लेके लोड नहीं होना लेना चाहिए कि मतलब आएगा समझ में कि नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, अगर नहीं आए तो मतलब भूल जाओ उसको, मतलब लोड नहीं लो उसके लिए पूरे पेपर पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये बात तुम लोग मान लो कि कभी भी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते पोएम्स को लेकर के। पोएम को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पोएम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जब भी हम लोग टेस्ट की बात करते हैं। ये बात तो आप लोगों को समझनी होगी कि गूढ़ रहस्य ये है कि ये मान के चलना है कि पोएम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं भी हो सकता है, अगर मैं नहीं भी करता हूं पोएम को, तो मेरे पास बैकअप में इतने क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे कि मैं कट ऑफ पार कर लूं और अच्छा परसेंटाइल ले आ पाऊं, राइट? तो अगर बाई चांस तुमको पोएम दिखता है तो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एग्जामिनर ये सपोज नहीं करता है कि तुम सारे के सारे क्वेश्चंस को करेक्ट करके आओगे पोएम को। समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर पोएम्स को एज ए स्पीड ब्रेकिंग ऑप्शन देता है कि आप फ्लो में क्वेश्चंस को करते जा रहे हो, अचानक से पोएम दिया, आप रुक करके 10 मिनट लगाए आपने समझने के लिए। जितने देर में आप समझने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो पोएम में, हो सकता है कि 3 या 4 पैराग्राफ आप दूसरे सॉल्व कर सकते थे या 5-10 वर्बल के क्वेश्चंस को आप कर सकते थे। ठीक है, तो आपको ये बात समझना होगा कि पोएम्स आर नॉट स्कोर बेस्ड आर्टिकल्स, दे आर स्पीड ब्रेकिंग ऑप्शंस, राइट? वो आपकी स्पीड को ब्रेक करता है। ठीक है, ओवैस कुरैशी पूछते हैं क्या पोएम्स आईएफटी में पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। मुझे नहीं याद है कि आईएफटी के किसी पेपर मैंने कभी पोएम देखा था। जैट और कैट को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे पूछा गया है। हाँ, जैट, कैट और बच्चे जो जीमैट की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को पोएम्स में ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि पोएम्स काफी ज्यादा आज पूछे जाते हैं जीआरई और जीमैट में भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा पोएम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पोएम को पढ़ने के बाद उसके पीछे उसका जो बैकग्राउंड है उसको पढ़ करके उसको इमेजिन करने का कोशिश करना मांगता है। ठीक है, कोई गाना, एग्जाम्पल के तौर पे गाना क्या होता है? गाना भी एक कविता ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हवा हवा ए हवा उनसे मिला दे, तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि वो कौन है जिनसे मिलाया जाए तुमको, तो इमेजिन करना होगा। अब तुम ये मान लो कि अरे बाप रे मुझे तो मालूम ही नहीं है कि वो कौन है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको नहीं मालूम है कौन है। वो कोई भी हो सकता है, किसी का भी प्रिय आत्मा हो सकता है। तो आपको ये इमेजिन करना आना चाहिए। बैकग्राउंड इमेजिन करने जिस दिन आ गया, पोएम्स बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, जरूरत क्या होती है, हम लोग क्या सोचते हैं कि बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है, हम लोग को पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यही प्रॉब्लम आ जाता है, जो गैप होता है। पोएम और प्रोज में अंतर यही होता है कि प्रोज सारा का सारा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है, पोएम बैकग्राउंड एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए आपको पोएम में बैकग्राउंड को इमेजिन करना होता है और उसी के पार्लांस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई होप कि इतना बात सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बता दो, ये जो मैंने बोला इसका भाव आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये भाव समझ में आया तो फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता था। ठीक है, शिखर कहते हैं क्लियर है जी। बाकी भी लोग अगर मुंह खोल दें तो उनके शब्दों से मुझे साहस बढ़े मेरा। हाँ, जल्दी से बता दीजिए जरा। क्लियर है, बहुत सुंदर बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके, वंडरफुल, ठीक बात है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये कुछ रोमांस से रिलेटेड पोएम है। रोमांस बोले तो आपके दिल में जो दीप जलती है उसके ऊपर थोड़ी बात करती है। मैं आपसे कुछ कहूंगा कि थोड़ा समय व्यतीत करें इस कविता के साथ और दिल में उठे विचारों को थोड़ा कंट्रोल भी करेंगे। प्रपोज मत कर देना यहीं पे किसी को। ठीक है, चलो पढ़ो इसको, चलो पढ़ लो जरा, 2 मिनट है, 2 मिनट पढ़ लो जरा। जल्दी से पढ़िए।
जिसको समझ में आया होगा उसके मन में प्रेमाग्नि की ऐसी उफान उठी होगी कि सारे पहाड़ों को निगल जाएगी। चित्त को प्रसन्न करने वाली कविता है, आत्मा को झकझोरने वाली कविता है। All right, brilliant. So this poem basically, all right. So this poem basically is all those people who have their testosterone jumping across the roof, and this poem is basically for those people who are not able to control their love for their Priyatma. Let me read this poem and try to explain what this poem talks about. This poem goes to the depths of love in human heart. How do I love thee? Let me count the ways. How do I love her or him? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight. So when he is not in front of me, I love him to the depth and breadth and height where my soul can reach. तो जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचता है कवि, जहां सूरज की धूप नहीं पहुंच सकती वहां एक कवि पहुंचता है। और ये बात बताता है कि जब वो मेरे सामने नहीं होती तो मेरी आत्मा जिस गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई को छूती है वहां तक मैं उनको प्रेम करता हूं। For the ends of being an ideal grace, I love thee to the level of every days. जैसे दिन के बाद दूसरा दिन आता है और ये शाश्वत सत्य है, वैसे ही मैं उनको प्यार करता हूं, उनको प्रेम करता हूं। यह भी मेरे लिए शाश्वत सत्य है। I love thee to the level of every days, the most quiet need by sun and candle night. I love thee freely as men strive for right. और जैसे आदमी राइट्स के लिए संघर्ष करता है वैसे ही मैं उनसे प्रेम करता हूं और मेरे अंदर भी उतनी ही आग लगी हुई है। I love thee purely as they turn from praise. और जैसे एक प्योर इंसान अपनी बड़ाई सुन करके उससे प्रभावित नहीं होता, एक जो मन का बड़ा आदमी होता है वो अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूर रहता है। जितनी प्योरिटी उनके सोच में होती है उतनी ही प्योरिटी के साथ मैं उनसे प्रेम करता हूं। I love thee with the passion put to use in my old griefs and my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose. With my lost saints I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God chose, I shall but love thee better after death. और अभी मैं उनसे प्यार करता हूं और अगर मुझे मौका मिला तो मौत के बाद भी मैं उनसे उतना ही प्यार करता रहूंगा। तो जैसा कि इन्होंने बोला, LIC वाली बात इन्होंने बोली थी किसी ने यहाँ पे कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वही बात यहाँ पे भी बोली गई है। ठीक है, तो कविता में बेसिकली जैसा कि आपने देखा कि इस कविता को समझने के लिए बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है और शब्दों को, एक एक शब्द को जोड़ करके पूरा एक प्लॉट बनाना आना चाहिए। लॉस्ट सेंट्स का मतलब होता है रिनॉद, लॉस्ट सेंट्स का मतलब होता है with my lost saints I love thee with the breath, smiles and tears of all my, with my lost saints का मतलब मैं उनकी कसम खाता हूं जो मेरे संत हैं, जो मेरे पुरखे हैं, उनकी एक बेसिकली इसमें एक रिनॉद, दिस इज अ मेटामॉर्फोसिस ऑफ थॉट्स व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड हियर, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, पैराग्राफ में बेसिकली आपको एक प्लॉट तैयार करना था पैराग्राफ को समझने के लिए, एंड आई एम श्योर कि सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, right? And let us go to the questions in order to understand as to what questions could be made out of it. Questions में मैंने options नहीं दिया है। Questions में basically मैंने आप लोगों को सिर्फ questions पूछे हैं और उस questions को मैं explain करूंगा ताकि आप लोगों को plot clear हो। आज के जो भी session है उसमें मैं options नहीं दूंगा आपको, आज सिर्फ हम लोग बातें करेंगे। Next जो मैं poem पे class लूंगा उसमें मैं आपको questions दूंगा, ठीक बात है? चलिए, बहुत सुंदर बात है। जैसे कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, राइम स्कीम का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। राइम स्कीम का मतलब होता है पैराग्राफ को लिखने के लिए किस टाइप की चीज का इस्तेमाल किया गया है। अब जरा नंबर ऑफ किस टाइप का स्कीमिंग का यूज किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो अगर आप देखेंगे, हाँ
ए बी बी ए बी बी ए बी बी। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो वो चीज फिट नहीं होती है ना। राइमिंग स्कीम जो है ए बी बी ए का है इसमें, बट अगर आप इसको पूरे नंबर ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 लाइंस की एक कविता है। और 14 लाइंस की जो कविता है, हाँ ठीक बात है शिवम, ए बी बी ए चल रहा है इसमें, राइट, ए बी बी ए चल रहा है, ये स्कीमिंग है इसमें। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, चूंकि लिटरेचर है तो पूछ लिया गया है। कैट का इसके स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। और 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं, जो कि अभय शुक्ला ने बहुत सुंदर से बताया है यहाँ पे। सो राइमिंग स्कीम, हाँ राइमिंग स्कीम शुड बी सोनेट हेयर, इट इज अ काइंड ऑफ सोनेट, ठीक है। और ए बी बी ए टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ए बी बी ए जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। What does strive mean here? I love thee freely as men strive for right. Men strive for right का मतलब यहाँ पे बताइए क्या है? Fight है, right? As you fight for right, as you struggle for right, similarly, I love thee. What is one example of alliteration in the poem? Alliteration का मतलब same letter जब बार बार यूज होता है, और same letter यूज होता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे I love thee with a love I seem to lose, यहाँ पे एल 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 बार बार आ रहा है। सो दिस इज an example of alliteration in the paragraph. alliteration का मतलब एक ही लेटर जब बार बार प्रोग्राम में आता है आपके सामने, राइट, सो उसके लिए alliteration हो जाएगा। सो ये alliteration I love वाला हो जाएगा। Why do you think the poet means to say when she says I shall but love thee better after death? That means मरने के बाद और भी ज्यादा प्रेम करेंगे। इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। पैराग्राफ जब पढ़ाया था आपको तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे बहुत ही बेसिक कविता थी। बेसिकली मैं बताना ये चाहता था कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द प्लॉट ऑफ द पैराग्राफ by reading word by word. So after every word, whenever you read words in a poem, you should be able to make plots in the poem. All right, I'll give you another example of how to make a plot, right? This is one poem. Just go ahead and read this poem. पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पोएम शुरू होता है, यहाँ से ऐसे आएंगे। ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जीवन में दर्द ना हो। ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और इसके बाद यहाँ पे सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है। तो यहाँ पे 9 आपको पैराग्राफ्स दिए गए हैं, और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये पैराग्राफ देता हूँ पढ़ने के लिए पैराग्राफ देता हूँ मैं। आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। 2 मिनट आप लीजिए। मैं 2 मिनट क्या 2 मिनट देता हूँ, हाँ 2 मिनट तो लेना ही चाहिए इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कविता का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया है। चलिए पढ़िए।
All right, next slide. 1 minute. It's a beautiful poem, ladies and gentlemen. It's a beautiful poem. All right. Let me explain this poem. Let me explain this poem, okay? And you just go through whatever is written here and I'll give you a voiceover, okay? I'll sit here and give you a voiceover, right? चलो देखते हैं. Honor to old Comanche. First of all, Comanche क्या है ये समझने वाली बात है. Comanche लैटिन अमेरिका में एक ट्राइब हुआ करता था जो हॉर्स की ट्रेडिंग किया करता था. वाइल्ड हॉर्सेस को पकड़ता था, उनको रेयर करता था, उनको पालता था और उसकी ब्रीडिंग करा करके बेचता था. चूंकि कोमांशे ट्राइब के द्वारा ही ये घोड़े पकड़े जाते थे, इसलिए कोमांशे हॉर्सेस नाम पड़ा. कोमांशे हॉर्सेस जो होते थे वो बड़े ही वाइल्ड हॉर्स होते थे और अमेरिकन आर्मी में इस ब्रीड के हॉर्सेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, बिकॉज बड़े ही ब्रेव हॉर्सेस हुआ करते थे. ये डरते नहीं थे, ये ब्रीडेड हॉर्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेट नहीं किए गए थे, वाइल्ड हॉर्स थे. सो हाँ, और उसके लिए कोमांशे वर्ड. तो एक हॉर्स था जिसका नाम कोमांशे था. कोमांशे ब्रीड का हॉर्स था जिसको ऑनर टू ओल्ड कोमांशे बोला गया. देखिए, ऑनर टू ओल्ड कोमांशे, ऑनर टू द ओल्ड हॉर्स, द सोल सर्वाइवर ही ऑफ द फियर्स फाइट वेयर कस्टर डाइड. लॉर्ड कस्टर ब्रिटेन का एक 7th कैवलरी जो ट्रूप था ब्रिटेन का, उनका कैप्टन था. और अमेरिका में जब ब्रिटेन ने रेड किया तो उस समय लॉर्ड कस्टर गए और लॉर्ड कस्टर के घोड़े का नाम यहां पे रेफर किया जा रहा है ओल्ड कोमांशे के नाम से, राइट. सो ऑनर टू ओल्ड कोमांशे, ऑनर टू द ओल्ड हॉर्स, द सोल सर्वाइवर ही of the fierce fight where Custer died, where Lord Custer died, with all his chivalry, with all his respect. आगे बोलता है honor to Keogh's charger. Keogh माने होता है कैप्टन, right? Honor to captain's charger. Charger मतलब horse. Only his flashing eye saw the 300 fighting, saw the 300 die. और 300 फाइटिंग, वो जो कैप्टन कस्टर का, लॉर्ड कस्टर का जो 7th कैवलरी थी उसमें 300 घोड़े थे, तो और वो 300 के 300 लोग मारे गए थे, राइट, उस वॉर में. तो क्या बोलता है, उस वॉर को इतिहास में कभी आप लोग पढ़िएगा, आप लोग जब इतिहास में पढ़ेंगे उसको कहते हैं हम लोग द बैटल ऑफ आई थिंक, यार मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है अभी मेरे को याद था, अभी स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, राइट. एक मिनट मैं बताता हूँ. उसका नाम है द बैटल ऑफ लिटिल हॉर्न. यस, द बैटल ऑफ लिटिल हॉर्न बोलते हैं उसको, ठीक है. सो चलिए देखते हैं. हाँ, सो ऑनर टू Keogh's चार्जर, ओनली हिज फ्लैशिंग आई सॉ द 300 फाइटिंग, सॉ द 300 डाई. सारे के सारे मारे गए. हिज वॉज द प्लेस ऑफ ऑनर where his Irish rider felt. आयरलैंड का था कैप्टन, जो लॉर्ड कस्टर था आयरलैंड का था. His was the place of honor where his Irish rider fell when the 7th rode into the valley. 7th मतलब क्या? 7th मतलब 7th cavalry of the horses. So when the 7th rode into the valley that blazed like a mouth of hell. The horse is a part of the soldier. He mixed his blood with theirs. Therefore for old Comanche all comforts and no cares. बोलता है कि जो घोड़ा जब सिर्फ बच के आया और 300 के 300 लोग जब मारे गए
तो उनके रिस्पेक्ट, उस हॉर्स के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि अ हॉर्स इज अ पार्ट ऑफ द सोल्जर, सोल्जर हॉर्स लौट के आया, इसका मतलब सोल्जर लौट के आया। ही मिक्स्ड हिज ब्लड विद देयर्स, जैसे सोल्जर्स का खून बहता है वैसे हॉर्सेस का भी खून बहता है। देयरफॉर फॉर ओल्ड कोमांशे, इसलिए जो ओल्ड कोमांशे बच के आया है, ऑल कंफर्ट्स, उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाएं, एंड नो केयर्स, और उसको कोई भी काम न कराया जाए उससे, वो बड़ी लड़ाई लड़के आया है। फॉर हिम फ्री स्टॉल एंड पास्चर, उसको फ्री चरने दो, फ्री घूमने दो, घासों पे फ्री चरने दो। वाइल द स्ट्रेंथ एंड लाइफ रिमेन, जब तक उसका जीवन है इस घोड़े को फ्री खाना खिलाओ, घूमने दो इसको। एंड नो लेट लिविंग राइडर बिस्ट्राइड हिज बैक अगेन, और जब तक ये घोड़ा जिंदा है इसके ऊपर कोई भी राइडर राइड नहीं करेगा। आर्मी ने ये रिस्पेक्ट दिया ओल्ड कोमांशे नामक हॉर्स को। बट व्हेन द बिगल्स समन, और जब वॉर होगी, जब बिगल्स बजेंगी, द 7th टू परेड, और 7th कैवेलरी जब फिर आएगी कभी भी, सैडल एंड ब्रिडल कोमांशे, और फिर कोमांशे को सैडल चढ़ाओ, ब्रिडल चढ़ाओ, ब्रिडल मतलब लगाम, सैडल मतलब जो घोड़े पे साजो सज्जा रखी जाती है जिसपे व्यक्ति बैठता है, तो कोमांशे को सैडल और ब्रिडल से सजाइए, इन सेबल हाउसिंग अरेड, और फिर जब 7th कैवेलरी जब भी चलेगी तो उसके सबसे आगे सारी आगे की लाइन में ओल्ड कोमांशे घोड़ा रहेगा। एंड लेट अ ट्रूपर लीड हिम, और ट्रूपर उसको लेके चलेगा, उसके ऊपर बैठेगा नहीं। द हॉर्स दैट सॉ कस्टर डाई, वो घोड़ा जिसने लॉर्ड कस्टर को मरते हुए देखा। फोर्थ टू द प्लेस ऑफ ऑनर इन फ्रंट ऑफ द कंपनी आए, और जो कंपनी 7th कंपनी है, कैवेलरी है, उसके सबसे आगे वो घोड़ा चलेगा, और घोड़ा जो है वो उसको सम्मान दिलाएगा। Will he neigh to his fellows whose riders fell on that fateful morn? Will they hear him amid the trumpets out on the little big horn? और war of big horn इसको बोला जाता था, मैं little horn बोल रहा था, little big horn, big horn बोला जाता था। तो क्या वो घोड़ा कभी फिर उस वॉर में जब गया होगा तो जिस तरीके से उसने आवाज लगाई होगी वो फिर कभी लगा पाएगा? क्या उस दिन जो लोग मरे वो फिर वो दिन वैसा फेटफुल मॉर्न कभी हो पाएगा? विल दे हियर हिम अमिड द ट्रम्पेट साउंड ऑन द लिटिल बिग हॉर्न, क्या वो घोड़ा फिर कभी जाएगा? ऑनर टू ओल्ड कोमांशे, रिस्पेक्ट देना चाहिए ऐसे घोड़े को। वाइल लाइफ एंड स्ट्रेंथ रिमेन, जब तक उसकी जान है। बट ओ टू सी द कैप्टन अपॉन हिज बैक अगेन, लेकिन हम लोग को दुख होता है ये बात देख करके कि घोड़ा तो है लेकिन उसके ऊपर बैठने वाला कैप्टन अब नहीं रहा। राइट, तो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ था, है ना, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ था जो ओल्ड हॉर्स, जो ब्रिटेन की जो 7th कैवेलरी जब गई थी, लॉर्ड कस्टर उसको लीड कर रहे थे और वॉर ऑफ बिग हॉर्न में उनकी डेथ हुई थी, उसके रिस्पेक्ट में ये लिखा गया है। और इसलिए ये जो पोयम है इसमें एक वीर रस है ना, इसमें एक वॉर की बात हो रही है, इसमें ब्रेवरी ऑफ अ हॉर्स की बात हो रही है, और वॉर हॉर्स जब लौटता है घर तो उसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है। आई होप दिस पैराग्राफ, दिस पोयम इज वेरी क्लियर विथ एवरीवन। जल्दी से बता दो सबको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबको समझ में आया तो जरूर लिखिए। और ये बहुत ही सुंदर कविता है ना, वीर रस की कविता है, और इसको आप लोग को पढ़ना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। राइट, चलिए अब प्लॉट क्लियर हो गया है तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा। What was Comanche to do during ceremonial occasions? Ceremonial occasions में कोमांशे को क्या किया जाना था बताइए? लिखा था पैराग्राफ में, हाँ, कि सबसे आगे चलेगा ये घोड़ा, इसके ऊपर कोई बैठेगा नहीं, और इसके ऊपर कोई बैठेगा नहीं ओल्ड कोमांशे के ऊपर। जब भी कोई सेरेमोनियल एक्टिविटी होगी तो इसको सजाया जाएगा, इसको सुंदर बनाया जाएगा, और सारे ट्रूपर्स को ये लीड करेगा। राइट, What form of figurative language when the 7th rode into the valley that blazed like the mouth of hell? That blazed like the mouth of hell. मेरे ख्याल से फिगर ऑफ स्पीच का एक क्लास मैंने आप लोगों के साथ लिया था, और उसमें बताया था कि जब भी किसी कंपैरिजन में like और as का इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। रिनॉद सिमिली है, blaze like the mouth of hell. When the 7th rode into the valley that blazed like a mouth of hell. Like सिमिली है,
ठीक है। हाँ, हाइपरबोल भी है लेकिन स्ट्रक्चर पूछ रहा है, टोन नहीं पूछ रहा है बेटा, है ना। फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बोल रहा है, टोन ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं बोल रहा है बच्चा। टोन ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बोलता तो डेफिनेटली हाइपरबोल था। फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बोला यानी कि स्ट्रक्चर पूछ रहा है रिनॉद, तो सिमिली हो जाएगा बेटा, ठीक है रिनॉद। चलिए 11th, व्हाट डज चार्जर मीन हियर ऑन टू कियोस्क चार्जर। चार्जर मतलब क्या होता है बेटा, हॉर्स। हॉर्स ही तो चार्ज होता है ना बेटा, है ना। कियोस्क मतलब कैप्टन, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाई डू यू थिंक द 7th कैवलरी ऑनर्ड अ हॉर्स। क्योंकि सारे के सारे लोग मर गए थे, 300 लोगों ने सैक्रिफाइस किया था, ब्रिटेन की पूरी 7th कैवलरी मारी गई थी, एक घोड़ा बच के आया था और उसने 300 लोगों के दुख को अपने साथ लेके आया था, इसलिए हम लोगों ने इसको रिस्पेक्ट देने की बात सोची, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज पोएम का एक फील लेने का सेशन है ना। और मैं इसमें ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पोएम्स को समझा कैसे जाए। और पोएम्स को समझने के लिए बहुत सारा इमोशंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर इमोशनल इंडेक्स आपका लो है तो पोएम को समझने में, पोएम के प्लॉट को अपने बैकग्राउंड में, अपने माइंड में बनाने में हो सकती है आपको थोड़ी समस्या हो जाए, और हो सकती है कि आपको थोड़ी दर्द का सामना करना पड़े, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और ब्यूटीफुल सा पोएम उठाते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। एक और ब्यूटीफुल सा पोएम उठाते हैं। अब पोएम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पोएम से मिलता जुलता एक बहुत ही सुंदर सा पैराग्राफ है मेरे सामने, राइट। चलिए पैराग्राफ पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। It is more or less like, it is a literature based paragraph which is almost like a poem. I give you 2 minutes to read this poem, 2 minutes to read this poem, so that you may all have an idea about this kind of paragraph as well, literature based paragraph as well. जल्दी से पढ़ लीजिए बच्चा। पढ़ लेंगे बेटा। हाँ जी, चलिए चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं पढ़ के आप लोग को ये समझाता हूं कि ये पैराग्राफ क्या बोलता है, ठीक है। ये पैराग्राफ आप लोग के साथ में क्या बोलता है, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। चलिए, shaking off from my spirit, shaking off from my spirit what must have been a dream. I scanned more narrowly the real aspect of the building. Its principal features seemed to be that of an excessive antiquity. कहता है shaking off from my spirit what must have been a dream. I scanned more narrowly the real aspect of the building. मैं जब
नींद से जागा, मुझे लगा जिस किसी ने जगाया हो मुझे, और मैं जब जगा तो मैंने स्कैन किया, बहुत ध्यान से देखा कि बिल्डिंग कैसी है, बहुत नैरोली देखा कि बिल्डिंग कैसी, बहुत ध्यान से देखा कि बिल्डिंग कैसी है। इट्स प्रिंसिपल फीचर सीम टू बी दैट ऑफ एन एक्सेसिव एंटिक्विटी। देख के ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी बिल्डिंग हो, एक्सेसिव एंटिक्विटी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। द डिसकलरेशन ऑफ एजेस हैड बीन ग्रेट, और वक्त के साथ जो रंग उड़े थे बिल्डिंग के वो भी बहुत अच्छे से दिख रहे थे। इस पता चल रहा था कि बिल्डिंग पुरानी थी। माइन्यूट फंजाई ओवरस्प्रेड द होल एक्सटीरियर। छोटे छोटे फंगस ने पूरे, फंगस को हिंदी में काई बोलते हैं, हरे रंग की होती है। माइन्यूट फंजाई ओवरस्प्रेड द होल एक्सटीरियर, पूरे चारों तरफ माइन्यूट फंजाई यानी कि काई लगी हुई थी। हैंगिंग इन अ फाइन टैंगल्ड वेब वर्क फ्रॉम द ईव्स, और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ईव, एडम और ईव थे, जो माना जाता है ईव जो थी वो दुनिया को सजाने का काम करती थी, और ऐसा लग रहा था मानो उस पूरे बिल्डिंग को स्वयं ईव ने खूबसूरती से फंजाई से सजाया हुआ था। Yet all this was apart from any extraordinary dilapidation, और फिर भी ये बिल्कुल अलग था, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलैपिडेशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलैपिडेशन का मतलब बिल्डिंग जब टूटती है, बिल्डिंग जब खराब होने लगती है, वक्त के साथ टूटती फूटती है बिल्डिंग, उससे ये अलग था, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, ये नॉर्मल था। नो पोर्शन ऑफ द मेसेनरी हैड फॉलन, और जो बिल्डिंग बनी थी उसमें जो ईंटों की जुड़ाई थी उसमें से कहीं भी कोई कमी नहीं थी, अभी तक बिल्डिंग में से कोई भी ईंट नहीं गिरी थी। And there appeared to be a wild inconsistency between its still perfect adaptation of parts and the crumbling condition of the individual stones, और ऐसा लग रहा था मानो कि हर जो चीज जहां बनाई गई थी वहीं टिकी हुई थी, और जो पत्थर जहां लगाया गया था वहीं टिका हुआ था, पत्थर कभी भी इधर उधर नहीं हुआ था। वक्त के साथ बिल्डिंग पुरानी जरूर हुई थी, लेकिन ईंट पत्थरों की जुड़ाई में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। In this, there was much that reminded me of the specious totality of old woodwork which has rotted for long years in some neglected vault, और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी फर्नीचर को, कारीगरी को, लकड़ी की कारीगरी को हम लोगों ने एक बंद संदूक में लंबे समय से रखा हुआ था, विथ नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ब्रेथ ऑफ द एक्सटर्नल एयर, और ऐसा लग रहा था उस बंद संदूक में उस फर्नीचर को हवा तक नहीं लगी है। Beyond this indication of extensive decay, बहुत ज्यादा सड़ चुका था। However, the fabric gave little token of instability, और फैब्रिक जो था वो सड़ने के बावजूद भी जो लकड़ी का जो फर्नीचर संदूक में रखा हुआ था वो वैसे ही टिका हुआ था, और ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी भी हवा दी जाए तो बिल्डिंग वो जो फैब्रिक था, वो जो लकड़ी था, वो तुरंत गिर जाएगा, ऐसा लग रहा था, लेकिन गिरा नहीं था। Perhaps the eye of the scrutinizing observer might have discovered a barely perceptible fissure, लेकिन अगर बहुत बारीकी से देखने वाला कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसने बहुत ही ध्यान से देखने पे पता चलने वाला एक फिशर को देखा हो, एक दरार को देखा होगा, which extending from the roof of the building in front, जो कि सामने के बिल्डिंग में एकदम छत से आ रही थी दरार, made its way down the wall in a zigzag direction, और zigzag direction में होती हुई नीचे की तरफ जा रही थी, until it became lost in the sullen waters of the tarn, और ऐसा लग रहा था जैसे नींव का जो पानी होता है, बिल्डिंग के नींव में जो पानी होता है उसमें कहीं जाकर के वो फिशर दरार खो जा रहा हो। तो बेसिकली ये पैराग्राफ एक पुरानी बिल्डिंग को बता रहा है, एक एंटीक बिल्डिंग के बारे में बता रहा है जो बहुत पुराना है, वक्त के साथ कमजोर हुआ है, लेकिन ईंट पत्थरों की जुड़ाई में कहीं कमी नहीं आई है। ध्यान से देखने पे एक दरार नजर आएगी जो छत से होते हुए नींव की तरफ चली जा रही हो, और ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग को एक संदूक में रखा गया हो जहां बरसों से हवा न लगी हो, सड़ के वो फर्नीचर सड़ गया हो, और ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी भी हवा लगने पे वो ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाएगी, लेकिन बिखरी नहीं है, खूबसूरती से अपनी जगह वहीं खड़ी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? क्या ये पैराग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बता देंगे मुझे। हाँ नहीं, रियलिटी है। ऐसा वो बोला है ना पहले ही कि नींद से जगा हो, जैसे मुझे लगा जैसे मैं नींद से जागा हूं, है तो रियलिटी। जल्दी से बता दीजिए।
टान का मतलब क्या होता है, बच्चे ने पूछा है। टान का मतलब होता है बेटा एक छोटा सा पूल होता है जो अधिकतर नींव जो होता है ना, बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग की जो नींव होती है उसके आसपास छोटे छोटे वाटर के पॉन्ड्स बन जाते हैं जो बिल्डिंग को कमजोर करते हैं, उसको टान बोलते हैं। हाँ, ठीक बात है। आई होप द एक्सप्लेनेशन वुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, हाँ चलिए, ओके, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पैसेज। पर्सोनिफिकेशन मेरे ख्याल से बहुत सारी हुआ होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सबसे अच्छा था पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि माइन्यूट फंजाई ओवरस्प्रेड द होल एक्सटीरियर हैंगिंग इन फाइन टैंगल्ड वेब वर्क फ्रॉम द ईव्स। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं उन्होंने बनाया हो, ये एक पर्सोनिफिकेशन जैसा दिखता है। आगे, राइट अ मेटाफर फ्रॉम द पैसेज। मेटाफर्स तो बहुत है पैराग्राफ में। मेटाफर का मतलब होता है जब कोई चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं लाइक और एज के बिना, है ना, तो वो चीज़ तो यूज़ किया गया है कई बार, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पैराग्राफ में खुद ही ढूंढ सकते हैं। राइट एन एलिट्रेशन फ्रॉम द पैसेज। एलिट्रेशन का मतलब जब सेम लेटर बार बार आया हो और वो आपको ढूंढना था। बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक स्क्रूटनाइजिंग मीन्स। स्क्रूटनाइज का मतलब ऑब्जर्व होता है, एग्जामिन होता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस पैराग्राफ इज वेरी क्लियर विथ एवरीबडी। जल्दी से बता दो मेरे को, क्या ये पैराग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए मुझे, सबको समझ में आ गया पैराग्राफ? क्लियर है सबको? खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चलिए, एक और मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको पढ़ें। ठीक है, आपको मैं 1.5 मिनट दूंगा इसको पढ़ने के लिए, इसके बाद भी 1.5 मिनट का पैराग्राफ है ये, तो 1 मिनट 30 सेकंड मैं देता हूं आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने हेतु, पढ़ने के लिए। चलिए पढ़ लीजिए पैराग्राफ को जल्दी से सभी लोग। सॉरी, 1.5 मिनट में पढ़ना है। मैं दूसरा पन्ना देता हूं, चलिए।
चलिए, जुलाई 4 1776 की बात है। जुलाई 4 1776 की हम लोग बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा पैराग्राफ है और इतिहास के पन्नों में आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई गई है। मैं पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूं। आई होप दैट यू पीपल विल एंजॉय रीडिंग दिस पैराग्राफ एंड अ लॉट ऑफ curtains from the contemporary history will be raised today via this paragraph. So all those people who are listening to me right now, I request them to give their heart, soul and attention to this particular paragraph if at all you want to feel and enjoy this paragraph. In Congress, July 4, 1776, the unanimous declaration of the 13 United States of America, when the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, to assume among the powers of the earth, to separate an equal station to which the laws of nature and nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that should declare the causes which impel them to separation. जुलाई 4, 1776 में अमेरिका में कांग्रेस ने 13वें राज्य को यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल किया और बताता है कि जिस लॉ से यूनाइटेड स्टेट्स का ये 13वां स्टेट जुड़ रहा है, ये लॉज ऑफ नेचर से ऊपर है, ये नेचर ऑफ गॉड से ऊपर है, ये अर्थ को बाइंड करने वाले लॉज से ऊपर है, ये लॉ ऑफ इक्वालिटी है। नेचर इक्वालिटी नहीं सिखाती, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिखाती है, लेकिन हम इंसान पढ़ने लिखने के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे नहीं, इक्वालिटी पे यकीन रखते हैं। जात, धर्म, रंग, रूप, इन सबसे ऊपर उठ के हर व्यक्ति को इक्वालिटी मिले, इसमें यकीन रखते हैं। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इसको सच मानते हैं। That all men are created equal and they are endowed by their creator with certain unalienable rights, और क्रिएटर उनको कुछ ऐसे राइट्स देता है जिनसे आप उनको अलग नहीं कर सकते। अनएलिएनेबल राइट्स होते हैं वो राइट्स जो हर शख्स को मिलना चाहिए, उस शख्स से आप उस राइट को छीन नहीं सकते हैं। दैट अमंग दीज आर लाइफ, और इनमें गिनती है लाइफ का, जीवन का, लिबर्टी यानी कि आजादी का, एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, और अपनी खुशियों को पीछा करने का, और अपनी हर व्यक्ति को पूरे दुनिया में अधिकार है खुश रहने का, यानी कि राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये तीन चीज भगवान हमें देता है और सरकार इस बात का ख्याल रखे कि हर व्यक्ति के इस अधिकार का हनन ना हो, हर व्यक्ति के इन अधिकारों की सुरक्षा हो। दैट इज सिक्योर दीज राइट्स, गवर्नमेंट आर इंस्टीट्यूटेड अमंग मैन, और सरकारें बनाई जाती हैं इंसानों में ताकि इन राइट्स को हम लोग बचा सकें। डिराइविंग देयर जस्ट पावर्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, और इन जस्ट पावर्स को, इन पावर्स को जो गवर्न कर रहे हैं उनसे भी बचा के रखें। सरकार को भी अधिकार नहीं है आपके इन अधिकारों का हनन करने का। दैट व्हेनेवर एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव ऑफ दीज एंड्स, इट इज द राइट ऑफ द पीपल टू ऑल्टर और टू अबॉलिश इट। और जब सरकार आपकी इस बात का खामियाजा आपको इस बात का खामियाजा भुगतने पर मजबूर करे, आपको सरकार इन अधिकारों से वंचित करे, देन लोगों के पास ये अधिकार है कि वो ऐसी सरकार को तबाह करें, ऐसी सरकार को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दें और उसको बदल डालें। And to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness। और ऐसी सरकार बनाए जो आपको सेफ्टी और हैप्पीनेस दे, और इन पावर्स का, इन राइट्स का सही उपयोग करें लोगों के सुरक्षा के लिए। प्रूडेंस यानी कि ये समझदारी, indeed will dictate the government's long established, should not be changed for light and transient causes। यानी कि कहता है कि समझदारी ये कहती है कि छोटी छोटी चीजों के लिए सरकारों को न बदला जाए। And accordingly, all experience had shown that mankind are more disposed to suffer while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed। और यह भी सत्य है कि इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है और बहुत जल्दी यह महसूस कर लेता है कि उसी को सबसे ऊपर ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो छोटी मोटी चीजों को सरकार चलाते समय नकारना भी चाहिए, ये समझदारी कहती है। हर छोटी चीज के लिए बड़ी सरकारों को गिराया नहीं जाता,
ये समझदारी होती है। बट व्हेन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ अब्यूजेस एंड usurpations pursuing invariably the same object evinces are designed to reduce them under absolute despotism, it is their right. लेकिन जब हद पार हो जाए, जब व्यक्ति देखे कि उसको अब्यूज किया जा रहा है, usurpations, abuses and usurpations, जब हम लोग हर चीज में मानव जाति को हम लोग डिस्पोटिज्म की ओर ले जा रहे हैं, एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म की ओर ले जा रहे हैं, जब उसको नकार रहे हैं, देन ये लोगों का अधिकार है, ये ड्यूटी है टू थ्रो ऑफ सच गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड न्यू गार्ड फॉर देयर फ्यूचर सिक्योरिटी. Such has been the patient sufferance of these colonies. और ऐसा ही रहा है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बोला जा रहा है, अमेरिकन्स बोल रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कि ऐसा ही सफरेंस इन कॉलोनीज ने दिया है, हमें कॉलोनीज को मिला है. And such is now the necessity which constrains them to alter their former systems of government. और ये अब वक्त आ गया है कि ऐसी सरकारों को पलट दिया जाए. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute tyranny over the states. और वक्त आ गया है जब ये मौजूदा जो राजा है ग्रेट ब्रिटेन का, उसके पैरों तले जो हम रौंदे जा रहे थे सदियों से, उसके पैर को तोड़ के हम अपनी आज़ादी को हासिल करें और संयुक्त अमेरिका जो है उसके सपने को हम पूरा करें. और आज 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड स्टेट्स के 13वें राज्य की संगठन को पूरा किया जाता है. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ था और ये पैराग्राफ आपको दिखाता है कि अमेरिका भी शायद उन्हीं ब्रिटिश कल्चर से गुजरा हुआ है जो यहाँ पे जिससे हम लोग गुजरे हुए हैं. राइट. सो दिस इज हाउ दिस पैराग्राफ वाज. आई होप दैट एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. सभी लोग लिख के बताओ ये पैराग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं आया. ठीक है, पैराग्राफ समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चंस भी आराम से समझ में आ जाएंगे और इसके क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेंगे. डिस्टर्बेंसेस या असर्पेशन, ज्यादती, डिस्टर्बेंस. ठीक है, सबको समझ में आया ये पैराग्राफ? चलिए, वेरी गुड, क्लियर है. लेट अस गो टू द क्वेश्चंस. What are the unalienable rights that document says are given to all men? Life, pursuit of happiness and pursuit of happiness, right? और क्या दिया रहा था? Liberty. Life, liberty and the pursuit of happiness. ये तीन चीजें unalienable right की तरह देखी गई हैं डॉक्यूमेंट में. Life, liberty and happiness, बिल्कुल सही बात है. According to the document, where does government get its just powers? From the people, right? They get their just powers from the people. और सरकार जब जुल्म करे तो लोगों की पास ये आज़ादी है कि वो सरकारों को तख्ता पलट करें. व्हाट डज असर्पेशन मीन? मैंने बताया क्या? डिस्टर्बेंस और जो ज्यादती करी जाती है ना. अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, हु हैज द राइट टू अबॉलिश और ऑल्टर गवर्नमेंट? पीपल हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट्स. राइट. सो आज थोड़ा सा लिटरेचर बेस्ड हम लोग पैराग्राफ्स किए. ठीक है, और लिटरेचर बेस्ड पैराग्राफ्स में आई होप कि आप लोगों को थोड़ा मजा आया होगा. आप लोगों ने बिल्कुल एंजॉय किया गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इसको. ठीक है, अगली बार ठीक है, ओके. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, अगली बार जो हम लोग पैराग्राफ करेंगे उस पैराग्राफ में मैं आप लोगों को इसके हिस्ट्री बेस्ड कुछ पैराग्राफ्स कराने का ऐसा कोशिश करूंगा और ताकि आप लोगों को सर द आंसर ऑफ पैरा नंबर 2 दैट यू हैव सेंड ऑन द टेलीग्राम, हाँ 5 मिनट्स में पहुंच जाएगा, 5 मिनट में पहुंच जाएगा फिगर आपके पास. ठीक है, चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. आज के लिए बस इतना ही. आज क्लास छोटी थी लेकिन पावर पैक थी. हम लोगों ने 4 पैराग्राफ्स किया और बहुत कम समय में किया. राइट. सो टुडेज क्लास वाज वेरी एफिशिएंट, very fast, very efficient, very nice class. चलिए, that is all for the day. Thank you so much. God bless you. May you have a wonderful, wonderful day ahead. ऐप is not working. ऐप में लाइव क्लास वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एक बग है, उसको हम लोग सही करने पे जुटे हुए हैं. तब तक आप वेबसाइट से यूज करें. राइट. That is all. Bye. Take care. Thank you. God bless you all.